Namaskar, myself Jaivir Shah, and today in this lecture we are going to discuss about engineering thermodynamics subject under Gujarat Technological University in Mechanical Engineering department. In third semester there is one subject called engineering thermodynamics, and this is the first lecture of it. So what we are going to cover in this lecture that might be you are curious about. So in this lecture, we are going to discuss about how to find out syllabus of the engineering thermodynamics from the Gujarat Technological University website. That is the first task. Secondly, we are going to discuss about how the process of knowledge is going to be transmitted. Means how many evaluations will be carried out by the GTU if you pursue this course, and how much evaluations are there. Point number 3, which are those reference books recommended by the GTU and which one is the best one out of it. Point number 4, any additional websites or any additional links that you need to visit in order to complete this subject in a depth manner. Don't worry, this lecture is going to be in English, means हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको समझेंगे. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम है जयवीर शाह. आई एम हैविंग 10 years of experience, teaching experience as an assistant professor at Virayathan Institute of Engineering under Gujarat Technological University, affiliated by AICTE and approved from UGC. Secondly, now my experience is 10 years. My qualification, BE Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 10 out of 10 SPI 3 times, twice. Masters in automobile with 9.12 CPI, then already completed PGD IPR course, post graduation diploma in intellectual property right with 9.12 CPI, the top in the Gujarat. Also a patent agent, Indian patent agent, and my Indian patent agent number is 3339. An influencer, a YouTuber, and your friend. So these are the qualifications of mine. Now let's move towards the today's topic. तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम जो डिप्लोमा से डिग्री करके आए हैं या फिर जो भी फर्स्ट टाइम थर्ड सेमेस्टर में आए हैं उनके लिए आफ्टर द ईयर 2018 and 19, so almost this is 2021, तो उनके लिए जो सिलेबस है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का वो कहां से मिलेगा. So the syllabus will be derived from GTU website. And what is the website of the GTU? gtu.ac.in. gtu.ac.in. ये वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो इस तरीके का पूरा पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब यहां पर कहां पर जाना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सिलेबस. तो इसमें हमें एकेडमिक्स में जाना है, और एकेडमिक्स में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं. एकेडमिक कैलेंडर है, ये भी आपको पता होना चाहिए. एकेडमिक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि कौन सी डेट को स्टार्ट होगा क्लास और कौन सी डेट को एंड होगा क्लास. चलिए देखते हैं. So tentative academic calendar 2020, 21 and 22
ओड टर्म किसे कहते हैं? जिनको नहीं पता है उनके लिए 1357 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर एंड 2468 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. टेंटेटिव क्यों रखा गया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इट मे चेंज, बट फिलहाल दिस इज अ टेंटेटिव टाइम टेबल एंड इन विच वी नीड टू लुक अबाउट थर्ड सेमेस्टर. यस, क्योंकि हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में ज्यादा बात करेंगे. सो फॉर थर्ड सेमेस्टर देखिए सबसे पहले हमें बी देखना है. तो ये हमने देख लिया बी. अब बी में भी हमें थर्ड सेमेस्टर देखना है. तो हमने देख लिया ये सेमेस्टर थर्ड. टर्म ओड मैंने आपको बताया 1357 सारे टर्म ओड कहा जाता है. कब स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग डेट है इसकी 2nd ऑफ अगस्त, 2nd ऑफ अगस्त. एंड कब एंड होगा? 8th ऑफ दिसंबर. तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका टर्म स्टार्ट हो रहा है 2nd ऑफ अगस्त से और आपका टर्म एंड हो रहा है 8th ऑफ दिसंबर पे. तो ये हमें पता चल गया. So that is the basic thing which is required from this academic calendar. Let's come back to the GTU website again. Okay, just a minute. So we are back at the GTU website और यहाँ पर हम देखेंगे, अब देखेंगे हम सिलेबस को. So let's talk about the syllabus. सिलेबस पे क्लिक करेंगे. देखिए एकेडमिक में ही जाके मैंने सिलेबस पे क्लिक किया तो ये सिलेबस ओपन हो गया. अब सिलेबस में कहा जाना है? न्यू सिलेबस में जाना है. And under new syllabus we need to select Bachelor of Engineering. And under Bachelor of Engineering we need to select branch which is mechanical in our case. Semester third, academic year 2018-19 onwards. 2020-21 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है. फिर भी आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं. चलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 8-9 में एक बार सिलेबस चेंज हुआ, 13-14 में दूसरी बार सिलेबस चेंज हुआ, 14-15 में तीसरी बार सिलेबस चेंज हुआ इन द सेम मैनर. बट 2021 में चेंज होने वाला था बट हुआ नहीं है. मैं दिखा देता हूं आपको. देखिए सर्च करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल हैपन. बट हम जैसे ही 2018-19 पे क्लिक करेंगे there is a modification in the syllabus. So under that syllabus we need to click on the engineering thermodynamics subject because I am going to teach engineering thermodynamics subject. So 3131905 that is the code. So we need to click on it. So we clicked on it and syllabus appears in front of us. Here is the syllabus. Let's discuss overall syllabus in a detailed manner, in a brief manner. Okay, so type of course, it is professional core. This is a professional course of the particular, what I can say, subject. And what is prerequisite? कोई सब्जेक्ट होते हैं ऐसे कि जो प्री रिक्विजिट होते हैं उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए प्रीवियस सब्जेक्ट का. जैसे कि मैं कहूं कि ये जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट है दैट इज द प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट ऑफ द आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जो आपको आएगा 7th सेमेस्टर में. उसके लिए ये कोर्स करना जरूरी है. अगर ये कोर्स क्लियर नहीं हुआ तो आप आईसी इंजन को समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से. तो यहां पर क्या है प्री रिक्विजिट? zeal to learn the subject. सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए. दैट थिंग ओनली रिक्वायर्ड. ओके, so rationale engineering thermodynamics is the course on thermal science and engineering. It studies various energy introductions, notably heat and work transfer. It is based on certain laws of nature which are never seen to be violated.
तो देखिए यहां पर लॉज ऑफ नेचर जो है उसको वायोलेट नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। और यहां पर लॉज भी समझाए जाएंगे और किस तरीके से हीट में से वर्क कन्वर्ट हो रहा है वो भी समझाया जाएगा। आप देखिए थ्रू आउट द एनर्जी प्रोडक्शन, चाहे वो थर्मल प्लांट से हो, थर्मल पावर प्लांट से हो, चाहे वो सोलर एनर्जी से हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक सोर्स है जो हीटेड है, जिसमें हीट है, और वो हीट काम किसमें कन्वर्जन कर रहे हैं, वर्क में कन्वर्जन कर रहे हैं। सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, और उस पर ही हम बात करने वाले हैं। अच्छा चलिए, लेक्चर्स कितने होंगे पर वीक? पर वीक देयर आर 4 लेक्चर्स। ट्यूटोरियल्स कोई होंगे? नो ट्यूटोरियल्स। प्रैक्टिकल्स होंगे? जी हाँ, प्रैक्टिकल्स 2 होंगे। क्रेडिट कितना है सब्जेक्ट का? 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। थियरी मार्क यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जीटीयू की जो एंड में, अंत में जो एग्जामिनेशन ली जाएगी सेमेस्टर के एंड में, ईएसी का मीनिंग होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, दैट इज ऑफ 70 मार्क्स। एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जो इंटरनली, जो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे आपको इंटरनली रिवैल्यूएट करना है आउट ऑफ 30 मार्क्स प्रोग्रेसिवली। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोग्रेस मुझे आपकी चेक करनी है। अगेन प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल के लिए वापस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 30 मार्क्स, वाइवा होगी वहां पर, एक्सटर्नल फैकल्टी आ सकते हैं और आपसे वाइवा ले सकते हैं। एंड इंटरनली प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल 150 मार्क्स का यहां पर क्लोज है, मींस 1 आउट ऑफ 150 मार्क्स यू विल गेट योर मार्क्स। ओके चलिए, इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक्स कितने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूं। सो नो नीड टू गो इनटू द डिटेल राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई हियर हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 5 topics are there, and total hours of teaching, the first chapter need to be completed within 4 hours, the second one need to be completed in 13 hours, third one in 14 hours, fourth one is 23 hours, and fifth one is 6 hours। तो यहां से आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि जो मेन कंपोनेंट्स है या जो मेन टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। दिस आर दी 3 मेन टॉपिक मैं कहूंगा। एक तो ये, सेकंड, क्योंकि उसका वेटेज भी देखिए 13 मार्क्स का है। थर्ड, उसका वेटेज देखिए 14 मार्क्स का है। सॉरी, देयर इज अ लिटिल बिट इंटरप्शन। ओके, यहां पर भी देखिए ये 14 मार्क्स का है। एंड फोर्थ वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन भी 23 मार्क्स का है। तो अगर इस तीनों को हम ऐड कर दें तो इट विल, 23 आवर्स का है, मार्क्स नॉट मार्क्स बट इन टर्म्स ऑफ वेटेज इसका ज्यादा है। So 23 plus 14, 37 plus 3, 40 and 50 आवर्स। हम 50 आवर्स तो सिर्फ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। फोर 50 आवर्स ये तीनों टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें से ज्यादा आउटकम आएगा, इसमें से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। सो वी नीड टू थिंक इन दैट मैनर ओनली। चलिए, अब जो इवेल्युएशन करना है, हम बोलते हैं ना काफी टाइम पे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में हमें रट्टा ही लगाना होता है, वी नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, ग्रास्प एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट द थिंग। देखिए ग्रास्पिंग का भी लेवल है, ग्रास्पिंग लेवल है 20, अंडरस्टैंडिंग लेवल है 30 एंड एप्लीकेशन लेवल है 50। तो आपके जो एग्जामिनेशन होगी उसका परसेंटेज ऑफ वेटेज इतना ही होगा कि आपको याद रखने जैसी चीज होगी वो 20%, अंडरस्टैंडिंग की जो चीज होगी दैट इज 30%, एंड एप्लीकेशन की जो चीज होगी दैट इज 50%। रेफरेंस बुक
Engineering Thermodynamics by P.K. Nag, McGraw-Hill, Fundamentals of Thermodynamics by Bugnack and Sontag, 7th edition, Valley, India Private Limited, Thermodynamics and Engineering Approach by Yunus Sigal and Bowles, McGraw-Hill Education, Engineering Thermodynamics by Gordon Rogers and Jon McHugh, Pearson Education Limited, Engineering Thermodynamics by Kerith, CRC Press, Engineering Thermodynamics by Jones and Duak, PHI Learnings Private Limited. ये 6 बुक्स है. इनमें से मैं आपको कहूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए. करेक्ट, आपको यही जानना था ना. तो कोई भी आप किसी से भी पूछिएगा, इन केस ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स एवरीवन विल रिकमेंड पीके नाग. मगर फिर भी आपको, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और आपको और भी ज्यादा बुक्स पढ़नी है, तो मैं आपको सेकंड एंड थर्ड बुक रेफर करता हूं. आप यहां तक ही बुक परचेज कीजिएगा, उसके बाद बुक्स की लेने की जरूरत नहीं है. लीजिए था तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. अब आप कहेंगे कि ये तो 3 बुक्स परचेज करने की बात है, तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. इफ यू वांट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, just comment me that you want this book. I will give it to you. Okay, because each and every college having Delnet library available, Delnet software available in their library, और Delnet software से ऐसी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है. दैट इज अ प्योर लीगल प्रोसेस. ओके, सो इफ यू वांट दैट बुक, प्लीज कमेंट कि मुझे ये बुक चाहिए, तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा. कोर्स आउटकम. इस कोर्स को पढ़ने से क्या क्या आउटकम मिलेंगे हमें? टू आइडेंटिफाई द यूनिक वोकैबुलरी एसोसिएटेड विद थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस, आपके पास एक वोकैबुलरी जनरेट होगी. वोकैबुलरी यानी क्या? शब्दकोश जनरेट होगा. जैसे कि PMM1, ये अभी आपको पता नहीं होगा अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया तो, बट जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो PMM1 पता चलेगा, PMM2 पता चलेगा, TDS क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, सारी प्रोसेसेस क्या है थर्मोडायनामिक्स की, वो पता चलेगी. सो दिस आर दी वोकैबुलरी पार्ट. वेटेज 7%. सेकंड, CO2. To state and apply the first law of thermodynamics for closed and open system undergoing a different thermodynamic processes and evaluate the feasibility of the thermodynamic cycle and process using second law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, कैसे वहां पर अप्लाई होता है. कभी कभी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये रीडिंग फॉल्स है. पावर प्लांट में जाके आप थोड़े से रीडिंग पूछेंगे ना उनको, तो आप डायरेक्टली एज बीइंग एन इंजीनियर आप कह सकते हैं कि ये रीडिंग फॉल्स है या सही है. वो किस तरीके से कह पाएंगे? बेस्ड ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हम इसके बारे में बात करेंगे. टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, उसका जो CO2 का वेटेज है वो 22% है. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 22% मार्क्स आपको मिलने वाला है. थर्ड है CO to apply the concept of entropy and exergy to different thermodynamic process and cycle. अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है और साइकिल है, वहां पर हमें एंट्रोपी एंड एक्सर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. सो दैट विल गिव 23% मार्क्स. CO4 है टू एनालाइज डिफरेंट गैस पावर, वेपर पावर एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल. गैस पावर साइकिल क्या होती है, वेपर पावर साइकिल क्या होती है, रेफ्रिजरेटर साइकिल क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे. 38% वेटेज. एंड टू मेक एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ कंबशन फिनोमिना. कंबशन फिनोमिना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. दैट वेटेज 10%. ओके. लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ विथ मैकेनिकल हीट पंप, to verify the first and second law with ICA engine. फर्स्ट एंड सेकंड लो IC इंजन के साथ और हीट पंप के साथ वेरीफाई करना है. टू डिटरमाइन द हीट लॉस फ्रॉम पाइप इन पाइप हीट एक्सचेंजर यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड टू वेरीफाई एंट्रोपी प्रिंसिपल
फॉर द हीट एक्सचेंजर। एंट्रोपी प्रिंसिपल का हीट एक्सचेंजर पे यूज करना है और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना है हीट एक्सचेंजर पे। टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहां कहां पर लग सकते हैं उसको जानना है। टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल एंड गोस-टोडुला थ्योरम, गोस-टोडुला थ्योरम कहां पर लगते हैं और एंट्रोपी प्रिंसिपल कहां पर लगता है उसके बारे में समझना है। टू कंपेयर ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल, ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल को हमें कंपेयर करना है। टू स्टडी वेरिएबल अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रैंकिन साइकिल, रैंकिन साइकिल को कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वीसीआर, वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो सिस्टम एंड टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सॉरी वीसीआर यहां पर होगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, क्योंकि यहां पर सीओपी लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका निकालना है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग पैरामीटर्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआर साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर पे भी पैरामीटर्स चेंज होंगे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया तो क्या होगा, यानी विंटर में अगर रेफ्रिजरेटर चालू रहे तो वहां पर क्या होगा और समर में चालू रहे तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि वो मशीन है तो क्या उस पर कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। टू फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गिवन फ्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर, ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। And to find out the calorific value of a given fuel with the help of Junkers gas calorimeter, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड जंकर्स कैलोरीमीटर का यूज करना है। कैलोरीमीटर यूज होता है कितनी कैलोरी बर्न होती है, जैसे कि हम कभी कभी खाना खाते हैं, बहुत अच्छी जगह खाना खाया होगा या कभी भी आप फूड पैकेट लेते होंगे तो फूड पैकेट के पीछे लिखा होगा कि आपने इतनी कैलोरी कंज्यूम की है, तो कैसे पता चला कि इसमें इतनी कैलोरीज है, वो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं कि वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए, बट हम फ्यूल के लिए काम कर सकते हैं कि पेट्रोल के अंदर कितनी एनर्जी है, डीजल के अंदर कितनी एनर्जी है, वो सारी चीजें जानने के लिए कैलोरीमीटर्स का यूज होता है। मेजर इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, मैकेनिकल हीट पंप, इंटरनल कंबशन इंजन, हीट एक्सचेंजर, वेपर कंप्रेशन टेस्ट रिग, बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड जंकर्स कैलोरीमीटर, ये सारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट, आपको कौन सी वेबसाइट को कांटेक्ट करना है, मैंने आपको कहा था, तो NPTEL के लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ में मेरे भी लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द सिलेबस टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।